اپنے حالات پہ کہ اپنے عیبوں کی کیا فکر نہ ہوئی. ایک صاحب بیٹھے تھے ماسٹر صاحب، اس نے کہا، ان صاحب کا نام لیا ان کے صاحب، ایک قافیہ رہ گیا، خبر نہ ہوئی. تو آپ دیکھیے ایسے سامعین تھے جو آج شاعر بھی نہیں ہے. اب یہ سنا اسے سمجھ میں نہیں آئے. تو بہت بھائی شاعری ہے بہت مشکل کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ جو جلیل مانک پوری بہت بڑا استاد ہے، اور امیر مینائی کا جانشین فرماتے ہیں کہ جلیل شعر کا کہنا بہت ہی مشکل ہے. جلیل شعر کا کہنا بہت ہی مشکل ہے، کبھی نہ سمجھے کہ ہم بھی ہیں کہنے والوں میں. زمین آسان ہوئی تو کیا، زمین مشکل ہوئی تو کیا، جلیل اچھی غزل ہر حال میں مشکل سے ہوتی ہے. تو جو اپنے یہ ہے تو یہ ہے بہت، اس میں چاہے کتنا کرتے رہو، اس کے بعد یہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں مکمل ہو ہی نہیں سکتے. کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صاحب کامل اور مکمل شاعر ہو گئے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کبھی، چاہے وہ غالب ہو، چاہے میر ہو، چاہے وہ عالمگیر. یہ کہتے غزل کہنا نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے، مگر یہ شعر بھی ہے میر. اب مشکل سے ہوتا ہے، جب اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو جائیں گے تو شعر کہنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ عروضی بھی ہیں آپ، زبان بیان سے بھی واقف ہیں، فنکار بھی ہیں، تو یہ سب پہ جب نظر ہوگی تو شعر پھر کہو گے تب مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسا جو چل رہا ہے وہ چلتا رہا. بہت سے میرے ایسے دوست اور جن کو میں نے ابھی کمال صاحب نے، اور کمال بیچارے پڑھے لکھے اس کے ہیں، ان کے والد پینٹر صاحب، اختر صاحب میرے دوست بھی تھے ان کے، اور ان کے تاؤ سمی بہت اچھے کاتب تھے، پڑھے لکھے، گھر سے تعلق ہے ان کا، بہت اچھے وہ ہیں. تو اچھا یہ ہے میرے، اب وہ شاعری بھی اپنے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اچھا شاعر بھی بن گئے. لیکن اب آنے والی نسل جو ہے وہ نہیں، وہ اب آگے نہیں آنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی نسل میں اردو ہے ہی نہیں. بلا شبہ، کیا بات. اردو نہیں ہے، وہ ناول ہے اردو زبان سے. اردو کا جو ہے، اردو زبان ہماری مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستانی زبان ہے. اور یہ ہم بابر نہیں کرا پائے جن میں شاعر یا ادیب گزرے کہ بھائی یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستانی زبان ہے. یہ ہماری زبان عربی ہے، یہ تو بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان تک محدود ہے. اور اس کے بعد جو بھی اپنے یہ ہے جو بولتے ہیں، تو اس کو یہ کرنا کہ ہماری یہ مسلمانوں کی زبان ہے نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستانی زبان ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اپنا یہ کہیں کہ صاحب ہماری، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اردو نہیں جانتا ہے تو وہ صحیح انگریزی نہیں بول سکتا، صحیح ہندی نہیں بول سکتا. تین کام اس کا درست نہیں ہوگا. یہ آپ سمجھ لیے وہ ہندی ہے، یہ آپ خوب سمجھ لیے. یہ بھائی یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اپنے. اب یہ وارث صاحب ہمارے، ان کے والد بہت اچھے شاعر میرے دوست تھے، بہت وہ تھے. ان کے ایک دادا تھے وہ بھی شاعر. یہ پڑھا لکھا خاندان ہے، بہت اچھے لوگ شاعر، اور ان کے بھائی بھی ایک شاعر، ان کے بہنوئی موئی بخش بھی شاعر. تو یہ بہت اچھے اس میں ہے. اور بھائی اللہ نے نوازا یہ ہے کہ اب بیوی زیبا فاروقی صاحب، ڈاکٹر زیبا فاروقی صاحب بہت وہ، اور شمس الرحمان فاروقی کی بھتیجی ہیں. انہیں کون ہندوستان پاکستان میں نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا ہے تو وہ تو بالکل ہی ناواقف ہے. تو یہ وہ ہیں بھائی. یہ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے شعراء حضرات آئے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے جیسا بھی جو ہو وہ
आता रहे, उस पे एतराज मत करो। अगर एतराज और ये करोगे तो वो जो कुछ चल रहा है वो भी नहीं होगा, वो भी कुछ नहीं होगा। तो इसे जिंदा रखना है। हम अब देखिए कि हमारी जबान उससे पहले जो भी जी फारसी थी, उसके बाद उर्दू। 600-700 साल तक हम हिंदी दबी रही, और हिंदी के बाद ऐसा हुआ कि अभी 75 साल हुए, 75 आजादी को 75-78 साल हुए कि हिंदी ऐसी लग रही है कि ये 600 साल पहले की थी। उन्होंने अपने घर में जिंदा रखा इसको, हिंदी को। और आज आप देखिए सब सब जगह। ये तो हमको भी अपने घर में कम से कम इतना चाहिए कि अपने बच्चों को उसको उर्दू जरूर पढ़ाएं। उर्दू पढ़ाना बहुत जरूरी है कि तो उसका जबान बयान अपना इनकार दुरुस्त हो जाएगी, तहजीब तमद्दुन ये जरूरी है। ये उर्दू ही देगी और कोई नहीं देगा, किसी नहीं। तो उर्दू को आप हमें अगर जिंदा रखना है तो ये जरूरी है। मशायरे खत्म होगा इसलिए वो शायर नहीं रहे। अरे भाई वसीम साहब रह गए, वो बेचारे जख्मी हो गए तो घर पड़े हुए हैं। अब कोई ऑल इंडिया मुशायरे के लिए एक भी आप नहीं गिना सकते, कोई है नहीं है। मैंने देखा कि भावनैया शकील साहब, और जब मुशायरे यहाँ होते थे हमारे चेयरमैन साहब शब्बीर हसन खां बदायूं के वो थे, तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुशायरा कराते थे, और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ शोरा को फहरिस्त होती थी इसमें। तो वो शायर उस जमाने में खुआन साहब, अनवर मिर्जापुरी, अच्छा अनवर देखो वो, और साबरी, अनवर साबरी, खामोश गाजीपुरी, और जनाब बेकल उसाई, फना निजामी, ये ऐसे शायर थे मुतरन्निम के कुछ पूछो मत, बहुत अच्छे ऐसे शायर। ये कि इससे बड़ी ये हुई एक बधाइयों में ये रहा कि एक नातिया मुशायरा सालिम मियाँ के यहाँ होता था दरगाह में, बहुत बड़ा, जो इतना बड़ा पूरे उसका हिंदुस्तान के शायर आते थे। नात का इतना बड़ा मुशायरा शायद यूपी में कहीं नहीं होता है सालिम मियाँ के यहाँ जितना। और बाज दफा ये होता था कि सुबह 9 बजे तक चलता था माशाल्लाह। जब ये वक्त उनका ये होता था कि भाई ये अब गुस्ल का है वो उसका किया जाएगा, नमाज पढ़ जाएगी, नमाज के फजर की बात शुरू हो जाता था। बहुत बहुत मकामी रह जाते थे। तो इतना बड़ा मोस्तर को रामकृष्ण मोस्तर को उन्होंने बुलाया, जगन्नाथ आजाद को उन्होंने बुलाया, चंद्र प्रकाश जौहर हर साल आते थे इलाहाबाद से नात बेचने पड़ते। रबाब साहब बहुत अच्छे शायर जो थे वो आते थे। कुछ शेर सुनाए तो बधाइयों जो है वो आज जो है अब वो रह गया। अब जो बधाइयों में कुछ नहीं है। आपका कलाम भी उनको सुनना शायद चाहेंगे नहीं हम है कुछ ये। आपसे। अच्छा मैं हाजिर करूंगा, हाजिर। हाँ जी हजरत जी, जी जी हजरत जी अबरार अहमद मंजर मेरा लड़का है, उसके 2 शेर सुनिएगा। जी जी पहले हम इनसे मेहमान से हम पूरा कर लें। यह है कि मैं हाजिर करता हूँ। हाँ। कोई शहबाज कब उड़ान में था, कोई शहबाज कब उड़ान में था, तीर जब तक मेरी कमान में था। मान में था, क्या बात है। कोई शहबाज कब उड़ान में था, तीर जब तक मेरी कमान में था, और खैरियत से था मैं अमान में था। खैरियत से था मैं अमान में था, खैरियत से था मैं अमान में था, गैर जब तक मेरे मकान में था। खैरियत से था मैं अमान में था, गैर जब तक मेरे मकान में था, और वक्त ने कर दिया है चुप वरना, वक्त ने कर दिया है चुप वरना, जहर तो मेरी भी जुबान में था। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
वाह, बहुत वाह। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब शायर मेरा साहब। दोस्त है, हरीफ नहीं। बहुत अच्छा। तू क्या मेरा बात। दोस्त हरीफ नहीं, मैं अभी तक ही गुमान में था। तू वाह। मेरा दोस्त है, हरीफ नहीं, मैं अभी तक इसी गुमान में था। और दो तीन जी। शेर और इसी गजल के, और दूसरी गजल के मैं और हाजिर करता हूँ। कहता हूँ कि हर घड़ी और हर आन जागता है, हर घड़ी और हर आन जागता है, सरहदों पर जवान जागता है। क्या हर बात घड़ी और हर आन जागता है, आता है। सरहदों पर जवान जाग। सरहदों पर जवान जागता है जी। हमें नजर आवाज नहीं आ म्यूट हो गई सर, आवाज नहीं आ रही। नजर नहीं आ रहा, वो शायद उनका नेट नेट हो वो का सकता है वो नेट का मसला होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो चल रहा है, पता नहीं, अभी मेरा भी बीच बीच आ और रहा है। हिंदुस्तान जागता है। और हाँ। एक शेर के लिए इसमें अर्ज करता हूँ कि नीचे सोते हैं सब किराएदार, हाँ, नीचे सोते हैं सब किराएदार, छत का मालिक मकान जागता है। जागता है। नीचे क्या सोते हैं बात है। सब किराएदार, नीचे सोते हैं सब किराएदार, छत क्या का बात मालिक है। मकान जागता है, अच्छा शेर है, छत का अरे मालिक बाप अच्छा मकान शेर, जागता है। और है, तीन चार क्या बात। तीन चार इशाराती तीन चार जुमले शेर हैं, क्या और बात है। एक गजल के हैं, वो हाजिर करता हूँ। अर्ज करें कि मेरे वजूद में, मेरे वजूद में, मेरे वजूद में ये आने वाला है। वो नेट का चल रहा है। मेरे वजूद में गंदा अभी तक लकीर है ही नहीं। और मेरा मुहिब मुसाहिब मुशीर है ही नहीं। मेरा मुहिब मुसाहिब मुशीर है ही मुशीर है नहीं। ही नहीं। मैं ऐसा शाह हूँ जिसका वजीर है ही नहीं। मैं ऐसा शाह हूँ जिसका भी नहीं। जिसका वजीर और ये नहीं। मसलहत है कि कासा है उसके हाथों में, हाँ ये मसलहत है कि कासा है उसके हाथों में। मैं जानता हूँ उसे वो फकीर है ही नहीं। मैं जानता हूँ वाह, कि वो उसे वो फकीर है ही है नहीं। ही नहीं। वाह वाह। थोड़ा सा हमें हमारे साथ कहो कमान हाथ में खाली है ही नहीं। कमान हाथ में खाली है, तीर है ही नहीं। तो सवारे कौन तेरे गेसुओं के पेचो खम, सवारे कौन तेरे गेसुओं के क्या बात। पेचो खम, सवारे कौन तेरे गेसुओं के पेचो खम। परेशान हाल गजल तेरा मीर है ही नहीं। परेशान हाल गजल तेरा मीर है ही नहीं। हमारे ज़ब्तो तहम्मुल के हैं गवाह बहुत, हमारे ज़ब्तो तहम्मुल के हैं गवाह बहुत। तुम्हारे जुल्म सितम की नजीर है ही नहीं। तुम्हारे क्या जुल्म कहने, वाह वाह। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। वाह वाह, बहुत माशाल्लाह। बहुत अच्छा, नाज़मा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत अच्छा। कि उन्होंने बहुत अच्छी निज़ामत फरमाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लेकिन मेरा फिर दरख्वास्त और अपील आपसे ये है कि भाई उर्दू को ज़बान को जिंदा रखने के लिए चलाते रहें, जो भी हसरात हैं जैसे भी हो, गैरों को भी। हमारी जैदी साहिबा बहुत इंशाअल्लाह सरपरस्त हैं माशाल्लाह से। उनका इतना तबीयत खराब रहने के बावजूद भी बहुत जुड़ी रहती है बेचारी, बीमारी में भी। बिल्कुल अभी अल्लाह ताला उनको हुआ है, लेकिन फिर भी सेहत तशरीफ याब रखे। फरमाए।
मैं जो बच्चा सुनाना चाह रहा था आपका اسرار صاحب भतीजा आपका कुछ 2 अशार सुनाना चाह रहा था اسرار क्या साहब ने हम आपने कहा था आपका भतीजा या कौन नहीं इनका नहीं, असरार साहब को तो आप इख्तिताम कीजिए, कोई बात अच्छा नहीं। ठीक है तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा से कि तशरीफ लाएं डॉक्टर कमाल साहब अगर नहीं है तो मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा से मैं मुल्तमिस हूँ कि कलिमात तशक्कुर अदा कर दें और उसके बाद आखिर में जो है हम मुल्तमिस हैं मोहतरम जनाब हसन बुखारी से की दुआ फरमाएंगे वो तो इंशाअल्लाह। इसलिए आपका से मैं ठीक कलिमात तशक्कुर के लिए जी वाह तमाम मेहमानों का बहुत ही मैं ममनून मशकूर हूँ। माशाल्लाह देखें आप बहुत ये अच्छा शुरू से मुशायरा लेकर रहा, आखिर माशाअल्लाह। तक हमारे इतने सीनियर भी जो है माशाअल्लाह अपनी सेहत की खराबी के बावजूद अलाल के बावजूद जो है वो बैठे होते हैं और आखिर तक प्रोग्राम को जो है वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रखते हैं। बड़ी बात है साहब मौजूद है, हमारे इतने सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं और जी इसरार अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत से हमारे तमाम शौरा। तो ये बहुत बड़ी बात है आप सब लोगों के इतना वक्त देना किसी भी प्रोग्राम के लिए और अपना आजकल जो है वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम है और बहुत से मसाइल हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उर्दू अदब के लिए जो आप काम कर रहे हैं या उर्दू अदब को जिंदा रखने के लिए या इसकी तरक्की और तरोीज के लिए उर्दू के लिए जो आप सब लोग अपने अपने तय काम कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलकर जो है एक बेशक जो है कहना चाहिए कि एक पूरा इदारा बन जाता है। तो आप सब अगर ना हो तो इदारा नहीं है और इदारा है तो फिर समझ लें कि उर्दू अदब जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा, सलामत रहेगा, चलता रहेगा। तो बिल्कुल शाद जिलानी साहब आप हमारे अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए काम होता रहना चाहिए, तो बेशक आप जैसे लोग जब तक सलामत हैं और आपकी दुआएं हम लोगों के साथ हैं तो हम भी इंशाल्लाह अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेशक करने की कोशिश शुक्रिया कर रहे हैं शुक्रिया और बेशक अल्लाह ताला तो रायगा नहीं जाने देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि इंशाअल्लाह। जहाँ भी है जिस आमीन जगह भी है आमीन अपने अपने तौर पर अपने अपने लहजे में अपने अपनी जबान अपने अपने जी इलाके के एतबार से वो उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है और उसको सराहना बिल्कुल चाहिए, ना कि ये कि सही हम उसे किसी को भी जो है वो उसको हदफ तनकीद का निशाना बनाए, वो बेशक निशाना बेशक निशाना बनाए और उसे ये कहें। ये बहुत बड़ी बात है, तख्लीकार होना एक बहुत अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद बाकी चीजें होती हैं, बाकी सारी चीजें उसके बाद शामिल होती हैं कि आप उसमें जबान भी देखते हैं, सलासत भी देखते हैं, रूज़ो बहूर होना तो कमाल है, वही है, होता है तो आप शायर होते हैं, अदीब होते हैं, कलाम आपका होता है। तो आज हमारे मुशायरे में जितने भी शौरा यहाँ पर शरीक हुए उन सबकी मैं ममनून मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर जो है वो डॉक्टर कमाल अख्तर साहब चूँकि खुद मौक़िक़ हैं, नक्काद हैं, उस्ताद हैं और तहकीक के हवाले से उनकी कई कुतुब आज शाया हो चुकी हैं, तो उनकी तहकीक के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है उर्दू अदब पर और वो जानते हैं कौन कहाँ किस जगह कौन सा काम हो रहा है और कौन से हमारे शौरा और उदबा जो है उनका क्या मकाम और मर्तबा है और यही वजह है कि वो हमारी टीम के सरबराह हैं और अपनी तंजीम के तहत मिलकर हिदायत बदायनी साहब और मैं तो खैर उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालती हूँ जो भी कुछ डालती हूँ, तो वो ये सब चीजें मिलकर करते हैं कि हमें किस चीज को किसको हमें आगे लेकर आना है या किसके लिए हमें जश्न मनाना है या किसको हमने जो अगले प्रोग्राम में पेश करना है। तो ये काम जो है वो डॉक्टर कमाल अख्तर साहब है, हिदायत बदायनी साहब है और पूरी एक टीम है जो ये सब मिलजुल कर रही है और साथ में ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के हमारे मोहम्मद नवाज गिलियाना साहब जो हैं उनकी भी बहुत हम ममनून और मशकूर हैं कि वो उर्दू अदब की जिस तरह से जहाँ भी जिस जगह भी उनकी जरूरत पड़ती है वो मौजूद होते हैं, कभी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए और इतनी बीमारी के बावजूद कि वो 3 महीने अस्पताल में रहे, पैरालाइज हो गए, इस वक्त भी जो है उनका हाथ काम नहीं करता और तकलीफ में है, लेकिन वो उसके बावजूद हमारे मुशायरों में शरीक होते हैं और हमें जो है हर मकाम पर हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं कि नहीं आपने जो भी काम करना है और आगे जो करना चाहते हैं वो जरूर करें, मैं आपके साथ हूँ। तो उनकी मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। अजरा अलीम साहबा की तो हम सभी जो है वो दिल से कदर करते हैं उनकी, जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत अता की है, वो माशाअल्लाह उनको नजर बद से अल्लाह ताला महफूज रखे और आमीन उनको माशाअल्लाह तरह माशाअल्लाह से सुभान जो है वो क्या बात जिंदगी राह में तरक्की करती रहे। आमीन आमीन शाद गिलानी साहब हमें आज बहुत खुशी हुई है कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे और आपने हम सबको सुना। हम आपके आगे बहुत जूनियर हैं, कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह आपने एक उम्र गुजारी है और उर्दू अदब को बहुत करीब से देखा है, खासतौर पर बदायूं के हवाले से जिस तरह आपने गुफ्तगू जो भी यहाँ फरमाई है,
वो वाकई काबिल दाद है, काबिल तहसीन है, और उस पर अमल करने के लिए हम सब जो है वो हम अपनी तमाम तर काविशों के साथ जो है इंशाल्लाह तो जो है आगे बढ़ते रहेंगे और लगन के साथ काम करेंगे। तो उर्दू अदब को फरोग मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतने खास काम करती हूँ। बाकी अज़रा माइक आपके पास। जी, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद हसनैन बुखारी साहब से कि आखिर में दुआ फरमाए, उसके बाद हम फर्दन शुक्रिया भी अदा करेंगे सबका। मोहतरम जनाब सैयद हसनैन बुखारी साहब, लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना अन्ता मौलाना फ़ाग़फ़िर लना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का अंतल वहाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आखिर में सब शोरा कराम का और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वालों में मोहतरम तनवीर फूल साहब न्यूयॉर्क से जुड़े, जनाब हैदर अलवी साहब हमारे साथ इंडिया से जुड़े, डॉक्टर रजी अमरोही साहब हमारे साथ जुड़े दिल्ली से, उनके साथ साथ रशीद शेख साहब हमारे साथ जुड़े बज़्म सुखन शिकागो के अमेरिका से, शिकागो से, डॉक्टर मुख्तार हयात साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े, मोहतरम अख्तर इमाम अंजुम साहब हमारे साथ ससराम बरेली से, बरेली नहीं था, बिहार से, बिहार से, माफी चाहती। सईद नजर साहब हमारे साथ जुड़े कुवैत से, मोहतरम सैयद हसनैन बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर पाकिस्तान से जुड़े, मोहतरम जनाब सालेह अच्छा साहब कनाडा से हमारे साथ जुड़े, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद नवाज गिलियाना साहब इटली से हमारे साथ जुड़े, मोहतरम जनाब खुमार दहलवी साहब हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े, और उसके बाद डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा हमारे साथ बरेली से जुड़ी, बिस्मिल्लाह खान साहब इंडिया से हमारे साथ जुड़े, मोहतरम जनाब इसरार अहमद खान साहब हमारे साथ बदायूं से जुड़े, ज़ेबा फारूकी साहिबा हम माज़रत चाहते हैं हमारे साथ जुड़ी, लेकिन हमारे साथ जो है वो शिरकत नहीं हो पाई उनकी मुकम्मल, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शायद मैं वक्त पर उन्हें मदु ना कर पाई, मेरी माजरत कबूल कीजिए। उसके साथ साथ डॉक्टर कमाल अख्तर बदायूनी साहब जो कि सदर हैं असहाब कलम बदायूं के, उनके साथ साथ मुंतज़मीन में जनाब हिदायत बदायूनी साहब हमारे साथ, उसके साथ वारिस रफ़ी साहब हमारे साथ जुड़े, मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ, उनके साथ साथ रईस आज़म हैदरी साहब हमारे साथ जुड़े कोलकाता इंडिया से। कोई नाम अगर रह गया हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। आज का ये जश्न मोहतरम जनाब, जी मैं तो हाजिर हूँ बिल्कुल, मोहतरम जनाब इरशाद जिलानी शेखुपुरी के साथ हमने मनाया। उम्मीद है कि कुछ कमी रह गई हो तो हम माज़रत चाहें, कोई भी कमी कोई कोताही मुझसे सरज़द हुई हो तो मैं आप तमाम असातिज़ा कराम और जय्यद शोरा कराम से माज़रत चाहूँगी कोई कमी बेशी के लिए। और मोहतरम जनाब शाद जिलानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर कि आपकी मौजूदगी और आपने जो पूरी तारीख हमारे सामने खोलकर बयान की, वाकई वो काबिल तारीफ है और सीखने का अमल है। और ये बताते रहना चाहिए, सीना बसीना बच्चों को जो है मुंतकिल करना चाहिए कि हमारे आबा-ओ-अजदाद जो हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस ज़बान की तरोीज के लिए। उर्दू इस वक्त दुनिया के छठे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली और सुनी समझने और पढ़ी लिखी जाने वाली ज़बान है, तो ज़बान की हिफाजत करना हम सब पर फर्ज। बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ आने का। वो लोग तो हमारे साथ यूट्यूब पर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा, निज़ामत का बहुत माशाअल्लाह, सबको बहुत बहुत कामयाब मुशायरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। कामिल राज साहब का दिल्ली साहब ने खबर लगाई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका ऑपरेशन कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए उनके लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल जाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह, कल कुमार साहब और हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। कामिल राज साहब अल्लाह आपको सलामत में रखे, आमीन। और अपना सब ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सभी को बहुत बहुत मुबारक।